اس انفارمیشن کا باہر آنا ہی اس بات کی ایک طریقے سے اندیا تھا کہ مذاکرات ناکام اور یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ یہ چیزیں باہر نہیں آتی. اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو پھر وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. عمران خان شفٹ ہو چکے ہوتے، لیکن کوئی رخنا تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اب شیر افضل مرغت صاحب نے اس سارے معاملے کو ایکسپلین کیا ہے. بٹ آئی تھنک سنگل سورس ویریفیکیشن ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کسی حد تک اشاروں میں وہ بات رکھ دوں گا. لیکن شیر افضل مرغت نے منتقلی کے حوالے سے اور کس شخص نے کی، کیا دعویٰ کیا، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے سنیں. تین 3.5 ایام میں پہلی پیشکش آئی، جس طرح خان صاحب نے خود میڈیا کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی. پھر علیمہ خانم نے جو ہے اس کی تصدیق کی، اور یہ آفر جب رد ہوئی تو 20 دسمبر یہ آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب نے کی، اور مذاکراتی عمل میں ہماری طرف سے جو ہے بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف صاحب تھے، اور علی امین خان کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے جب یہ انکار ہوا تو پھر جو ہے 3 ہفتے یا 20 دسمبر تک خان کی رہائی کی جو ہے پیشکش ہوئی. یہ پیشکش جو ہے لے کے بیرسٹر گور صاحب 3 دفعہ جیل گئے. ملاقات جو ہے انہوں نے کس نے پیشکش دی تھی، جس کی پیشکش لے کر ہو گئے؟ یہ پیشکش کس نے دی کہ 20 دسمبر تک آپ کو رہا کر دیں گے؟ یہ پیشکش کس نے دی؟ محسن نقوی صاحب کے تھرو یہ پیشکش ہوئی، اور محسن نقوی صاحب جو ہے میڈیا کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں اقرار کر چکے ہیں. اب یہ محسن نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن میری اطلاع یا تحریک انصاف کے لوگوں یا ان کے کیمپ میں یا ان کی طرف کی جو ان کی سائیڈ آف سٹوری ہے، وہ صرف معاملہ محسن نقوی کا نہیں، محسن نقوی اس کو فالو اپ کر رہے تھے. محسن نقوی کے علاوہ بھی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ آفر اور اس کی جو کنٹورز ہیں یا طریقہ کار، اس کے اوپر ایک پہلو ہے جس کے اوپر میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ڈسکس ہوا تھا عمران خان کے ساتھ، اور کن بنیادوں پر اس آفر کو کیا کہہ کر جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ہم نہیں کریں گے. لیکن اب ایک اس بات سارے معاملے میں ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر جو ایک طریقے کا ہالٹ آ گیا تھا، پوز آیا. پوز کیسے آیا؟ 5 نومبر امریکی صدارتی انتخاب، اس کے بعد سارا کچھ چلتا رہا. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. گڈ مارننگ. متواق کہتے بدھ کو، ویڈنسڈے انگلش میں کہتے ہیں. تاریخ ہو گئی ہے جی 6 7 8 ہو گئی ہے جی. آج فوجی عدالتوں کا کٹی کٹا نکل آئے گا، پھر اس کے بعد لگے گی کہیں 26 کی یا 8 فروری کا کیس، تو پھر اس کے بعد دھاندلی کیس، اس کے بعد آئینی سربراہ. بس وہ پانی میں مدانی چلانے والے ہیں. یہ تھے عیسیٰ نقوی صاحب. یہ ان کا اچھا پروگرام، اس کے اخیر کے 3-4 منٹ بھی سننے والے وہ انٹرنیشنل جو پاکستان کا ہے نا، وہ اس سے حوالے سے ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ جو انٹرویو جو دیا گیا ہے، یہ دیا گیا ہے ندیم ملک کو. آپ کو پتہ ندیم ملک ان کا انتہائی بغیرت ہے، ککے سے ہی ہے، ڈاکٹر ہے بیسکلی MBBS. بشرا بی بی کا پہلا انٹرویو اس نے کیا تھا. اس کے بعد اس کو جو تویزوں اور پیروں اور فقیروں والی تمام جو اس کے خلاف سیریز چلائی تھی، وہ اسی نمک حرام نے چلائی تھی کہ ایک عورت با پردہ وہ انٹرویو دیتی نہیں، تو بار بار مجبور کر کر کے عمران خان کو چکما دے گی، تو چلا گیا تھا. یہ کوآرڈینیٹر کا اگر اردو ترجمہ کریں، پنجابی کریں تو وچولا بنتا ہے. اگر اردو ترجمہ کریں تو مڈل مین انگلش ہی بنتا ہے. بات چیت کرنے والا جو بیچ میں ہوتا ہے نا، یہ وہ کہ ادھر سے بات لی ہے تو اس کو دی، اس کو لی تو اس کو دے دی، بس یہ والا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے. اس کی اپنی کوئی پاور نہیں ہوتی. اگر پنجابی ٹھیٹھ پنجابی نیگیٹو کرے تو دلہ تھا. یہ ہاں جی دلہ تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا. اس میں جو ایک عیسیٰ نقوی نے ہلکا سا اشارہ کیا، اس کے علاوہ بھی کوئی تھے بندے، کوئی تو تھے نا، محسن نقوی تو اکیلا نہیں. وہ تھے کور کمانڈر پشاور، جو ہم اپنی یہ بریکنگ نیوزوں میں بتا بھی چکے ہیں. تو پھر جا کے بی بی سے بھی پوچھتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو
तो ये बता दिया, नया कट्टा खुल गया। अब तकरीबन इमरान खान है वो कुंडी लगा के गुटखा होता है, वो बाज़ ये जो मजबूत होते हैं ना बड़े बड़े दर दीवार, एक इधर किला सा होता है, एक उधर बीच में राड डाल देते, प्लेटें डाल देते हैं, वो इतनी मोटी पट्टी डाल देते हैं, सरिया डाल देते हैं कि पक्का ही बंद हो गया जी, वरना कुंडी शुंडी तो थोड़े छोड़े से टूट जाती है ना। अच्छा जी, अगली बात कर लें। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान, तो वो जो है ना वो जो तामन, तो आपको पता है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा ही यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश भी अनकरीब शुरू कर लेंगे, अपने नवासियों से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। से पागल हो गया है, कभी कैदी नंबर 804, कभी बानी है तहरीक इंसाफ, कभी साबिक वजीर आजम, कभी अडयाला के बासी, कभी जमान पाक के रिहायशी। तुम जो खुद मीटिंग करते हो तो 145 मरतबा उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत, जब तुम ये लिख कर और इसको पढ़े भी इरफान सिद्दीकी साहब और दूसरा जगह के बानी है तहरीक इंसाफ, तो मुझे सुनने वाले अगर ये ना कहे कि ये हुकूमत का बिकाऊ है, इनका डाउट है, तो क्या कहे? वो क्यों मेरी बात सुने? इतना आजाद परिंदा है पाकिस्तान का मीडिया जो है, गुलाम मीडिया। जब इसके सर में डंडा बजता तो फिर बोलता उनकी ज़ुबान, जब इसने ज़्यादा रात को शरबत पी लेता ना कांसी का, तो फिर ये बोलता है। ये फैसल नसीर के गिर जो आज मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उसने ही कहा था ना कि आज शाम 7 बजे के बाद इसका नाम नहीं आएगा। साथ ये चौधरी अहमद शरीफ बैठा हुआ था, साथ फैसल वाडा भी था, सामने टीवी चैनल के मालकान थे या उनके डायरेक्टर न्यूज़ थे या सेकंड इन कमान थे। जिस तरह जियो वाले हैं तो वो जियो को डील तो उनका बेटा ही कर रहा है ना, मीर इब्राहिम, तो मीर इब्राहिम था मालिक, तो वो था ना अमीर शकील रहमान साहब वगैरह वगैरह, इस तरह ये थे बंदे। तो अब ये इसने थोड़ा सा निकाला कि हमें किसने रोका था, ये नुसरत जवेद के तो बानी के, आप वो कहें तो फलाना तो टमकाना के, इसकी बस वो बाज को होते थे ना, ये बड़ा महसूस मैंने किया, अगर किसी को नागवार गुजरा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ा अच्छा इसमें महसूस हुआ, क्योंकि जरा तड़पा दुम पे पाव आता है ना, तो फिर जो शराबी कबाबी इस तरह ही तड़पा करते हैं। आपकी तफरीह और तबाह के लिए खुशक मौजू होते हैं ना, तो वो तर भी तो करने होते हैं ना। अच्छा जी, आप पहले तो चल पेगा, नहीं चलेगा, 2 दफ़ा करना पड़ता। पहले पे आता ये फेसबुक सानिया खान पीटीआई की है, तो ये अच्छी कितनी हैं बच्चियाँ जो लगी हुई हैं बेचारे को। सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। इस सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ ना जावां। मुझे आज तक मुझे ये सुना नहीं था, ये इसने किसके लिए कहा था, पुराने में से निकाल के ये अपने जो वॉरियर है ना उन्होंने किया था, ये किसके लिए, किस लिए और क्यों और कब कहा था। अच्छा जी, तो ये ज़रा बताइएगा इसने कब और क्यों और किस लिए कहा था, कोई शायद याद आ आपको। ये मोहतरमा जो मरियम नवाज साहबा जो सपने में किसको याद कर रही है, जासम कतरी को याद कर रही है, ज़रा बताइएगा प्लीज़। ये उसको भेज दी आपके सामने। इस तरह काम करते हैं, जड़ा करना है तो फौरन जड़ा ना वो कर दो, फटाफट जो कर दो जो काम करना, तो वो हमने फिर कर दिया, आगे भेज दिया, वहाँ से जवाब आ जाएगा। आगे कामरान शायद सबको सुनो, उमर डार ने उसको सही ठोका है, उमर डार ने ये बकवास कर रहा है, कूट पे रहता है, झूठ मारता पे। कॉल आई जो कि नॉर्मल नंबर से मोबाइल से कॉल थी, और उसमें उन्होंने कहा कि उस्मान डार साहब जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको इंटरव्यू देना चाहते थे। मैं तो बड़ा खुश हुआ। आपको क्यों कहा? बाकी सारे इतने, एक बंदा जो अपने भाई, उसका भाई मुझे बता रहा है कि उसने मैसेज देके गया था कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो बस एक ही शख्स से रब्ता करना हुआ, कामरान शाहिद। तो फिर कॉल मुझे तो कोई छंबे की बात नहीं, कॉल मुझे क्यों आई, और आया मैं जर्नलिस्ट, और उसने बात ये क्या की, उसे ये बात है कि मुझे मिलकर कोई बगल गिर होना है,
या कोई रोना धोना है, उसने कहा ये इंटरव्यू देना, ठीक है, वो उनसे बात कर रहे, कहते वो बिजी हैं, लेकिन वो आपको इंटरव्यू देंगे, आप बताएं कब आज का रख लें। तो मैं दो वजूहत की वजह से बड़ा एक्साइटेड हुआ। एक तो ये कि यार उस्मान डार का पता चल गया, सही सलामत है, भाई है हमारा, और दूसरा ये कि यार जब वो इंटरव्यू दे रहा है, उससे बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ, क्या बात करता है, वो कहाँ था कहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, आप दुनिया न्यूज़ के चैनल उनको बताया कितने बजे आएंगे वो। उन्होंने कहा नहीं वहां तो नहीं आएंगे वो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं उनके घर आ जाऊँ या किस तरह होगा। कहते नहीं उनके घर में भी आपने नहीं आना। मैं कहा फिर? कहते वो आपकी हवेली आएंगे। अच्छा, आपकी हवेली आएंगे। उमर डार साहब ने उनका मैसेज पहुंचा दूं अपने ट्विटर पे, उसने ये उमर डार का ट्वीट है, तो वहाँ से दोनों आपके ये कामरान शाहिद को उसने एड्रेस किया। आपके इरशाद भट्टी को दिए गए इंटरव्यू में उस्मान डार के अगवा के बाद बाजियाबी से मुतालिक सवैध झूठ ने मजबूर किया कि कहे कि दुरुस्तगी को रिकॉर्ड पर रखा जाए। आपने कहा उस्मान डार के इंटरव्यू की दरख्वास्त उमर डार के जाने सब की गई थी, जबकि मैं हल्फन कह रहा हूँ ये बात झूठ है। मैंने उस्मान डार के इंटरव्यू से मुतालिक कतई आपसे ना कोई दरख्वास्त की ना रब्ता किया। उस्मान डार के अगवा से कबल मेरा हर रोज़ अपने भाई से रब्ता था, लेकिन बाजियाब होते ही आपके पास इंटरव्यू के लिए कैसे पहुंचा ये बताने में आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा आपको भी अभी तक किसी अदालत ने तलब नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हुई आपको बुलाकर इस बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं तो झूठ बोलकर हक़ायक़ ना मसला करें। तो ये जो है पीटीआई को उसने टैग किया, फ्रंट लाइन कामरान शाहिद को टैग किया, इरशाद भट्टी को दुनिया न्यूज़ को किया। ये इरशाद भट्टी के यूट्यूब चैनल पे आया तो बना लिए सबके, चलो रोज़ी कमाने का सबको हक है भाईजान। तो ये मैंने वर्शन आपको दिया, बस ये झूठ बोल रहा है कूट पे अमरेंदा है। अच्छा जी, फिर अगली आपको बात एक और कर लेते हैं। सोशल मीडिया से न्यूज़ व्यूज़ आप देख रहे हैं। जो बुनियादी हुकूक है, हमारे जो सियासी हुकूक है, वो हमें देना होंगे। गोली चली है यकीनन, यहाँ उस गोली का हिसाब देना होगा, खून बहा है यहाँ। ये कल मैंने आपको कल शाम को डेली डायरी में इसका ये सुना दिया था, गलती से चल गया, तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेने। खान ने अब कह दिया छोड़ दो मुझे आप सारे। फिर ये पांचों जो है थे ना, बीसी थे एमसी, पांचों ने फिर बैठ के चार ने कॉन्फ्रेंस की है, दुम पे पाँव है। ये सारे जो है ना ये गधे हैं, जब तक इनके ऊपर ठोका टाकी ना हो तो ये जो है ना इनको वो आता नहीं है, ये चलते नहीं। अब कल इन्होंने निस्बतन, वो भी उस मेयार की नहीं थी, निस्बतन अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खुश करता है चारों पासों का। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे नुक्ता नज़र से वो केस 2+2=4 है। उसमें हमें भी मालूम है कि इसमें सज़ा के अलावा कोई और फैसला जो है वो मुमकिन नहीं है। हमें भी इसमें कोई शक नहीं है। हमारे राणा साहब आई लव यू टू, आपके ऊपर से बाला आपसे ज़्यादा मरियम वेल इन्फॉर्म है, आप उससे पूछ लीजिएगा आई लव यू टू। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों डिले हो रहा था। अब 13 को आ ही जाना है, ये मेरा ख्याल करें न्यूज़ नहीं है, किससे ज़्यादा उसको ज़िल्लत क्या पहुँचानी है। हाँ, इलीगल आर्मी चीफ, रिटायर जनरल को आर्मी चीफ जो लगाया बकौल खान साहब के, तो मैं कहता हूँ इलीगल है। इलीगल होगा कि जो इलीगल उसने सारे काम किए रिवर्स होएंगे, प्रमोशनें भी सारी रिवर्स होएंगी, ये भी घर को जाएगा। तो उसमें जहाँ पे क्रिमिनल केस बने वो भी बनेंगे, और किसने किया शहबाज शरीफ ने वो भी बनेगा। लेकिन अदालतें आज़ाद हुई तो मेरा ख्याल है मेरे जीते जीते अदालतें आज़ाद नहीं होंगी जब तक डी चौक के ऊपर वो जो इसका थंबनेल है ना, वहाँ 10-12 लाशें नहीं लटकाई जाएंगी। वकार सेठ वो उसको प्रमोट नहीं किया था, ऊपर नहीं ले गया था, जिसका उसने गुस्सा ये मुशर्रफ के केस में लगाया था कि इसको उल्टे इसको लटकाओ, साले को घसीट के लाओ उसकी डेड बॉडी को। वो जो उसने गुस्सा भी था उसका, वो इतना वो भी फने खानी था, मार दिया उसको। फैज़ मीद ने टीका लगा के मार दिया, जहर का टीका। किसी ने नहीं कराया, किसका करवाओ, पोस्ट मार रही है, किसी को बताइएगा नहीं। हमारे वहाँ मरियम का मसाफा चाय खानों में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, चौकों पर के ट्रैफिक वार्डन, थानों में, असम्बलियों में, डॉक्टरों के रेस्ट रूम में,
रेस्ट रूम में, वो कपा कपा होता है, वो बेचारी नर्सों को कपलू करते हैं, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं, मैं परसेंटेज बताऊंगा, फिर आपके कोई ताले काली निकल आई तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे। गंदा माहौल है। बस हीरा मंडी है जी ये, जो सरकारी अस्पतालों में नर्सें जो, अल्लाह माफ़ी दे। डॉक्टर के रेस्ट रूम में, जजेस के रिटायरिंग रूम में, वकला चैम्बर में, वकला के बार रूम में, भाप उड़ाती चाय के दौरान और आम के गर्म लिहाफों में, हर तरफ जिसने भी ये तस्वीर देखी कहा, ओए तेरी, ओए वेख, ओए हाथ मिलाया, ओए हाथ फाड़ लिया, ओए की हो गया, ओए बुला ही है बई, वो दोनों हाथा ना पड़िया भी, ओए हिलांदी भी पई हो बई, ओए हिलांदी जाई आ रही है, लै की हो गया भी। चलो जी कर लो जुबाना लंबियाँ ते बन जाओ यूथ ही है। ये मुस्लिम लीग के उसके ऊपर था, तो उसने कहा एक हाथ मिलाने से 2 अरब की डीलिंग वही पेमेंट डिले जो कर दिया, रीन्यू कर दिया करदा, जब दूसरी दफ़ा मिलाएगी तो फिर नहीं पाएगी। तो ये आगे मैं कह रहा हूँ, जब तीसरी दफ़ा मिलाएगी तो एक और जुनेद सफदर बिन जैद बिन नहान हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।